Morning, everyone. Start sending your attendance. Meanwhile, everyone join. We will morning class. We will be beginning with the chapter equality in Indian democracy. I guess we have already discussed. Start discussing the chapter for exams. Sorry, before vacations. So I will again repeat whatever we discussed, right? And after that, we will be moving forward. Okay, and I assume that everyone has done the assignment for medieval India and has sent to. Not, please do that by tomorrow. Okay, tomorrow is the last day to send the assignment for medieval India. Start with the chapter that is democracy. Sorry, equality in Indian democracy. Anand, you have a doubt? I will take that down later. Let me start the chapter first. अगर ऐसे हम डाउट लेने लग गए स्टार्ट करने से पहले ही it will a syllabus will never be over. Now, equality in Indian democracy. Page number would be just a minute. I'm just telling the page number. Page number is 213. Page 213. What is equality and what has its role? What is the role of equality in Indian democracy and how Indian democracy ensures equality to everyone? So basically, we'll be dealing with equalities and inequalities. खाली equality discuss नहीं करेंगे, inequalities भी discuss करेंगे. Let's start. Democracy and essential features. What are the essential? First of all, what is the essential features of democracy? Before moving to equality, we need to understand what are the essential features. What makes? How can you say a country is democratic or not? You can say that by looking these features. Okay, what are these features? One is active participation by the citizens. That is, citizens are a part of electing representatives, electing the government. वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग इलेक्शंस में. कैसे करते हैं? वोट करते. दे विल वोट देन ओनली गवर्नमेंट विल फॉर्म ना, तभी तो गवर्नमेंट बनेगी. Right? Then freedom to express one's opinion. I can say, I can keep my opinion, I can keep my viewpoints regarding the government, its policies, people, ministers, everyone. I have that freedom. This is an essential feature of democracy. Okay? Resolving conflicts through consensus and consultation, that is discussions. Consensus means collectively किसी रिजल्ट पे आना, किसी नतीजे पर आना डिस्कशन करके. ऐसे नहीं लड़के नहीं आना है, डिस्कशन करके. नॉट बाय फाइटिंग, नॉट बाय आर्ग्यूइंग. नो, कंसेंसस मीन्स व्हेन वी पेशेंटली एंड थ्रू नॉन वायलेंस मोड्स वी डिस्कस एंड वी कम टू अ कंक्लूजन. ठीक है. जब भी इश्यूज, कन्फ्लिक्ट्स कैसे? कन्फ्लिक्ट्स मतलब इश्यूज. इश्यूज को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? कंसेंसस और कंसल्टेशन से डिस्कस करके. एंड व्हेन there is equality and justice. So these are the features of essential features of democracy. जहां अगर कोई कंट्री कह रही है हम डेमोक्रेसी हैं, तो चेक these features. You need to check these features of that country. Does the people have or the citizens have active participation? Do they have freedom to express their opinion? वहाँ issues कैसे resolve हो रहे हैं? Are they having equality and justice? Understood? Understood?
Now, types of equalities. इक्वालिटी की बात करते हैं. जितने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, जितनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, they have certain aims to achieve. Okay, they have certain aims जो वो अचीव करना चाहते हैं इक्वालिटी के टर्म्स में. कौन सी इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी. अब योर क्वेश्चन वुड बी, ये होती क्या है? Panya, can we settle and can we be here? I've already missed out important points. Political equality, social equality, and economic equality. These are the aims of democratic governments. One by one, I will be explaining them to you. Okay? सबसे पहले political equality की बात करते हैं. Political equality means whenever the government, not the government actually, the constitution gives voting right to everyone. Okay? Voting right to everyone. लास्ट ईयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ के आए हुए. All the citizens, irrespective of their all adult citizens who are 18 plus, more than 18 years of age, 18 or 18 years of age, they can vote irrespective to what caste they belong, to what religion they belong, class, gender, anyone who is 18 and 18 plus can vote in the country. Obviously, he should be an Indian citizen. Any Indian citizen who is 18 and 18 years above of age can vote. This is called universal and adult franchise, and this gives political equality to the people. Politically सब equal है, सबके पास equal right है. One person, one vote. मैं वोट करने जाऊंगी तब भी एक वोट गिना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर करने जाएंगे तब भी एक वोट गिना जाएगा, चाहे प्रेसिडेंट वोट करने जा रहे हैं वो भी एक वोट गिना जाएगा. Anyone just because of some privilege or authority, ये नहीं होगा कि उनका वोट 2 वोट गिने जाएंगे. वैल्यू वही रहेगी, एक 1 person 1 वोट, सेम वैल्यू. अगर मेरे वोट की 2 वैल्यू है तो सबकी 2 वैल्यू. ऐसा नहीं है कि किसी की एक पर्सन का एक वोट 4 के इक्वल गिना जा रहा है, किसी का 2. नो, एवरीवन irrespective. Okay, so this is political equality. Political equality में 2 चीजें आती हैं, universal adult franchise and the value of the vote. Political equality में 2 चीजें आएंगी, याद रखना. UAF, that is universal adult franchise, plus value of the vote. मेरे वोट की क्या वैल्यू? अगर सब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है सबके वोट की एक वैल्यू, तो एक ही वैल्यू होगी, चाहे प्रेसिडेंट वोट करने जा रहे हैं चाहे प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं, कोई वोट करने जा रहा है, इररिस्पेक्टिव. गॉट द पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी में 2 चीजें याद रखिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू सोशल इक्वालिटी. सोशल इक्वालिटी तब होती है जब जितने सोसाइटी के लिए जो चीजें बनी है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, राइट, सर्टन बेनिफिट्स, राशन बेनिफिट्स, ये सब उस सोसाइटी को वो सबको मिल रहे हैं, वो सब एंजॉय कर पा रहे हैं. ऐसा नहीं है आई एम रिच और आई एम वेल टू डू ऑफ तो मैं ही हॉस्पिटल अफोर्ड कर पा रही हूँ. क्या ये सोशल इक्वालिटी हुई? जिसको जरूरत है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है हॉस्पिटल्स को. सोशल इक्वालिटी इज हैविंग एक्सेस टू द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, ये सब जो सोसाइटी के लिए बने हैं.
इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वल पे और इक्वल वर्क। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी है, men, women, anyone, right? If they are doing the same work, they should be paid same. Two people in the same position should be paid same. सेम पोजीशन पे मैं काम कर रहे हैं दो लोग, तो उनकी पे सेम होनी चाहिए। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिकली पैसे वाइज सब इक्वल कमा रहे हैं जो सेम पोस्ट पे हैं। ये नहीं हायर अथॉरिटी भी आपकी जितना ले रही है, नहीं, हायर अथॉरिटी अलग पेमेंट होगा, लेकिन जो सेम जगह काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, उनको सेम पे होना चाहिए। अगर मैं, मेरा काम एसोसिएट कुछ मान लो, अगर मेरा काम दिन में 100 ईंटें उठाने का है, आई एम गेटिंग 100 रुपीज, एंड a man who does the same job, he is getting 150 rupees. This is inequality. This is inequality. तो inequality हुई ना, मैं भी 100 ईंटें उठा रही हूँ, वो भी 100 ईंट उठा रहा है, we are picking same amount of bricks. Why they are getting 100 rupees, why I'm getting 100 rupees and he's getting 150, just because I'm a woman? ये inequality है। अगर हम इक्वल काम कर रहे हैं तो हमें इक्वल पे मिलना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस है आपके बुक में, वी विल बी डिस्कसिंग दिस ओनली, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड व्हाट इज सोशल इक्वालिटी, ये मैंने आपको समझाया है, इट इज नॉट इन द बुक, ठीक है। सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल इक्वालिटी को अच्छे से समझना, गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। आगे चलो, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, or you can take it from recording as well. Now, inequalities. Despite Constitution of India, the Indian Constitution, equal status guarantee करता है, equal status देता है सबको, but in reality inequality exists करता है, in reality inequality exists करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया पॉलिटिकली तो हम सब इक्वल है, सोशल और इकोनॉमिक, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता भी सब इक्वल है, कोई बात, इट्स ओके, बट व्हाई देयर इज इनइक्वालिटी, रीजन क्या है इनइक्वालिटी का? इनइक्वालिटी का रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज मैम, कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम? रिसोर्सेज द मटेरियल with the use of which you make your life easier, जिनके यूज से आप अपनी लाइफ को इजी बना रहे हो, ठीक है। और वो कैसे बनाते हैं, मनी, कि अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास वाटर बॉटल है, मैं इसमें पानी पी लेती हूँ, मेरी लाइफ इजी बना रही है, कैसे खरीदी, कैसे खरीदी मैंने, पैसों से, राइट। गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर लिया, कूलर ऑन कर लिया, एसी ऑन कर लिया, कहाँ से आया, पैसे से आया। ये सारे रिसोर्सेज है मेरे, फैन, कूलर, बॉटल, ये सब रिसोर्सेज है मेरे जो मैंने पैसों से बनाए हैं, ठीक है। कुछ नेचुरली भी होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, बट मैं अभी पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में बात कर रही हूँ, ओके, आई विल टॉकिंग इनटू पॉलिटिकल साइंस। इसका रीजन ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बेसिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इन द सोसाइटी। आप बोलोगे मैम कैसे, तो ऐसे कि मैक्सिमम ऑफ द मनी
right? Around 70 to 75% of the money is concentrated with big business houses and big people. ठीक है, कुछ एक बहुत अच्छा अमाउंट 70 to 75% ऑफ द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द बिग पीपल एंड बिग हाउसेस, बेसिकली बिग बिजनेस हाउसेस, बेसिकली इंडस्ट्रीज के पास है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, मेरे पास कम है, किसी के पास मुझसे भी कम है, ठीक है, किसी के पास मेरे से बहुत ज्यादा है, इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आते हैं अंबानी, टाटास, इनके पास है। इस वजह से, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। हम सबको इकोनॉमिकली जज करते हैं नहीं करते हैं, इकोनॉमिकली यानी इन द टर्म्स ऑफ मनी। Do we judge people in terms of money they are having? Yes or no? हम सोचते हैं ना इसके पास तो कम पैसे हैं, अच्छा नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं होगा। Yes or no? Thumbs up or thumbs down? Yes or no? We judge people on the basis of money they have, right? We do. तुम नहीं करते, सोसाइटी करती है बेटा। इट कैन बी योर परस्पेक्टिव, तुम्हारा परस्पेक्टिव हो सकता है कि नहीं मैम हम नहीं जज करते हैं, बट सोसाइटी करती है, बच्चे आज भी करती है, राइट? Further, we'll be discussing about three types of equality that is prevalent in the country: caste-based, gender-based, and discrimination against differently abled. Differently abled means पहले इनको बोला जाता था disabled, ये disabled people, discrimination against disabled। फिर टर्म चेंज कर दी गई, वो डिसेबल नहीं है, वो डिफरेंटली, वो किसी और तरीके से एबल है। ठीक है, डिसेबल कैसे एबल्ड है? ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, उनका दिमाग नहीं चल रहा, उनका काम नहीं कर पा रहे, नहीं, वो सब कर पाते हैं, बस कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती है उनके, दैट देयर हैंड इज नॉट वर्किंग, देयर गॉड फॉरबिड उनकी लेग चली गई किसी एक्सीडेंट में या सम अदर डिजीज की वजह से, ठीक है, डिजीज की वजह से कुछ हो गया उनको। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसेबल हो गए, नहीं, उनका दिमाग चल रहा है, दे कैन सी, दे कैन फील, दे कैन डू वर्क, मेंटल वर्क कर सकते हैं वो। हर काम फिजिकल वर्क नहीं होता है, ये मेंटल, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेंटल वर्क है, दिस इज नॉट फिजिकल वर्क। आप पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट फिजिकल वर्क, दिस इज मेंटल वर्क, राइट? सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड पीपल अभी भी होती है, ठीक है? कास्ट बेस से शुरू करेंगे। कास्ट बेस से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। देखो, कास्ट सिस्टम सब पढ़ के आए हो, हिस्ट्री में पढ़ के आए होगे ना, वर्ण सिस्टम, वर्ना सिस्टम पढ़ के आए होंगे, राइट? शेयर व्हाइट बोर्ड विद यू। वरना सिस्टम पढ़ के आए होगे ना, दैट एंशियंट इंडिया में there were four groups, categories: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras। ना इनके नीचे थे दलित्स, ये वाली कास्ट, ठीक है? या चलो कंफ्यूज मत हो जाओ। हाईएस्ट इन द ऑर्डर, राइट?
They were highest in the order. They used to do all the religious activities. Kshatriyas का काम था इनकी प्रोटेक्शन प्लस सोसाइटी की प्रोटेक्शन. The kingship. Vaishyas, business, merchants. शूद्रास का काम था इन तीनों को सर्व करना. ठीक है. अब ट्रेडिशनली क्या था, एंशियंट टाइम्स में क्या था, ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था. ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन पे बेस्ड था और ये चेंज हो सकता था. वैश्यास क्षत्रिय सुन सकते थे, क्षत्रियास वैश्या सुन सकते थे. जरूरी नहीं है कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा मैं सारा दिन तलवार लेके खड़ी रहूंगी. नहीं, मुझे खेती करनी अच्छी लगती है, मुझे बिजनेस करना अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है. हो सकता है कोई शूद्र बिजनेस में चला जाए, वैश्या बन जाए. ठीक है, ये स्ट्रिक्ट नहीं था. दिस वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्ट्रिक्ट होने लग गया. ये डिस्टिंक्शन स्ट्रिक्ट होने लग गई. एंड इट वॉज ऑक्यूपेशन से चेंज होकर इट वॉज बेस्ड ऑन बर्थ. अगर आप किसी शूद्रा के घर born हो गए हो, you are Shudra for lifetime. If you are born in a house of a Vaishya, you are a Vaishya for lifetime. Kshatriya and Brahmin and so on. ठीक है. अब ये हुआ कि Shudras were to serve all these three, right? इन्होंने take it for granted ले लिया. तो यहाँ से शुरू होती है शूद्रास पे डिस्क्रिमिनेशन. इसको हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, वो यही है, दलित्स और शूद्रास. They cannot live in the areas or in the village where Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas reside. अगर ये मेन विलेज है तो इनको यहाँ कहीं दूर इतना सी जगह मिल जाएगी. They cannot take water from here. They cannot go to the temples. स्कूल तो भूल ही जाओ. They are not allowed. They are not allowed to take education. ना टेम्पल ना एजुकेशन. ठीक है. जितने मीनियल जॉब्स हैं, मीनियल मतलब 40 पूरी वाली जॉब्स, वो शूद्रास और दलित को करनी है. ठीक है. Everyone knows eating cow meat is banned, is considered a very bad thing in Hinduism. है ना. शूद्रास को कई बार वो खाना पड़ता था क्योंकि उनके पास खाना ही नहीं है. जो मरी हुई काउज हैं, जो मर गई हैं, बुफेलोज हैं जो मर गई हैं, तो वो खाने को फोर्स किया जाता था खाने के लिए. तो शूद्रास और दलित के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था उनको. एंड इट्स नॉट एंडेड हेयर. अभी भी it is still continued, still continues in our villages. ठीक है. शेड्यूल कास्ट, दलित, शेड्यूल कास्ट हो गए, दलित हो गए, इन सबको रेफर किया जाता है शूद्रस. ठीक है. अब क्या बोला जाता है इनको? शेड्यूल्ड कास्ट. आगे एक्सप्लेन करते हैं. बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, इन सबका नाम सुना. बी आर अम्बेडकर का तो नाम सुना होगा. एक बहुत अच्छी सीरीज भी तो चल रही है बी आर अम्बेडकर की लाइफ पे एंड टीवी पे. कभी उसके प्रोमोस देखे? प्रोमोस देखे किसी ने? तो उसी से आइडिया लग गया होगा कि कितने डिस्क्रिमिनेशन हुई. तो बी आर अम्बेडकर himself, he is the father of Indian Constitution. He himself faced discrimination in his schooling and educational days in India. ठीक है. और किस बेसिस पे हुई थी? कास्ट के बेसिस पे. शेड्यूल कास्ट, शूद्र, दलित, दलित थे, दलित कास्ट थी उनकी, सिर्फ इस बेसिस पे. ठीक है. आज 21st सेंचुरी में भी विलेजेस में, कोर विलेजेस में, आप दिल्ली वगैरह में आप नहीं देखोगे, लेकिन कोर विलेजेस में आज भी
कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। कोई जाता है विलेजेस वगैरह को जाके देख के आए हो? वेल्स वेल्स वगैरह अलग होते हैं कुछ सेक्शंस के, अगर कोई गया है तो। नहीं गया तो पूछ सकते हो अपने घर में, ठीक है। आज भी बहुत सारे अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है सोसाइटी के, दे कैन नॉट यूज द वेल्स ऑफ ऑफ द विलेज ऑफ अपर कास्ट पीपल। अभी भी अभी भी ये सिस्टम फॉलो होता है जहाँ सिर्फ अपर कास्ट रहेंगी और अलग थोड़ा दूर शूद्रास और वैश्यास रहेंगे। अगर वो यहाँ से भी निकल जाते थे ना, तो पूरा एरिया एक तरह से सैनिटाइज किया जाता था पुराने टाइम में। पुराने टाइम में भी सैनिटाइजेशन होती थी, ऐसी बात नहीं सिर्फ आज नहीं होती, पहले भी होती थी। जब पूरा सैनिटाइज किया जाता था गंगा जल वगैरह, गोमूत्र वगैरह का स्प्रे करके, एंड मंत्र वगैरह का जाप होता था, ठीक है। बात आ रही है समझ में? कास्ट बेस्ड हॉस्टिलिटीज के एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे रिसेंट टाइम्स में। बहुत आपको इसके सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स यूपी में मिलेंगे, यूपी के 4 विलेजेस में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, बिहार, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया फॉलोज, स्पेसिफिकली तमिलनाडु फॉलोज स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम इवन टुडे। तमिलियन ब्राह्मण्स का नाम सुना है किसी ने? तमिलियन ब्राह्मण्स होते हैं, दे स्ट्रिक्टली फॉलो कास्ट सिस्टम आज भी, राइट। और इसकी वजह से, क्योंकि हम इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है एजुकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, विलेजेस में। पूरा इंडिया इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इलेक्ट्रिफाइड होने वाला है, सब विलेजेस में आती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जस्ट बिकॉज अपर क्लास को डोमिनेट करना है इनको, ठीक है, वो इन तक यहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज नहीं पहुंचने देती। क्यों? अगर यहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज पहुंचने लग गई, गवर्नमेंट इनको फेवर करने लग गई, तो अपर कास्ट की डोमिनेशन खत्म हो जाएगी। अपर कास्ट किस पे रूल करेगा वहां पे? बात समझ में आ रही है? गेटिंग थिंग्स, ठीक है। उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर और ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रन को, अच्छा अगर वो स्कूल चले भी जाते हैं, शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रन, दे कैन नॉट, बी आर अम्बेडकर का किसी ने देखा होगा, प्रोमो वगैरह, दे वर नॉट अलाउड टू सिट विद द अपर कास्ट स्टूडेंट्स। वो नीचे बैठते थे, अपनी दरी लेकर आते थे, जूट का, जूट की गोनी, पता है सबको? जूट का वो होता है जिसमें बोरी होती है जूट की, सबको पता है जूट जूट की जो बोरी होती है ना, वो लेकर जाते हैं वहां पर बैठने के लिए। पानी नहीं पी सकते। बी आर अम्बेडकर एक बहुत मतलब थोड़ा हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट है। सबको पता है ना कितनी गर्मी पड़ती है मई जून में, जून में, जून जुलाई में कितनी गर्मी पड़ती है। बी आर अम्बेडकर को पानी ना पियोन पिलाते थे ऊपर से, मतलब ऐसे करके। जस्ट मिनट, ये मैं जरा सेव कर लूं। हाँ, उनको ना ऐसे करके पानी पिलाते थे ऊपर से, जैसे बी आर अम्बेडकर का ये हाथ है, तो यहाँ से ऐसे पानी पिलाते थे पियोन। जिस दिन पियन नहीं आया ना, उस दिन उनको किसी ने पानी नहीं दिया, वो पानी नहीं पिए उस दिन पूरा दिन, क्योंकि उनके पास कोई नहीं जाता था, सिर्फ पियोन जाते थे, और पियोन खुद शेड्यूल कास्ट के थे, और वो भी ऊपर से पानी पिलाते थे, टच नहीं करने देते थे कुछ भी। वो पूरा दिन प्यासे रहते, स्कूल भी उनका दूर होता था। जस्ट इमेजिन, आपसे भी एक छोटा बच्चा 10 या 12 साल का, 10 या 11 साल का, पूरा दिन प्यासा था जस्ट बिकॉज दिन पियन नहीं आया, और उसको किस पे बैठना पड़ रहा है गर्मी में? क्लास के बाहर बैठ के सुनते थे वो, और उनके भाई दोनों क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई किया करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू क्रॉस दैट डोर।
और ये आज भी बहुत सारी जगहों पे होता है। या तो बच्चे अपना पानी खुद लाए, खत्म हो गया तो स्कूल की उनकी टेंशन नहीं है। अपवास की डोमिनेशन है वहाँ पे। कि उन तक कई बार वेलफेयर प्रोग्राम्स भी नहीं पहुंच पाते जो गवर्नमेंट पर जाना चाहते हैं। अगेन वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास। वी आर मीटिंग नेक्स्ट ऑन Tuesday. So what your homework is, you have to read the two pages. That is page 213 and 214. That's the homework. Fine. So see you everyone. Tamil balance I know. Okay. Attendance has been sent by everyone. Okay, great day.